All right, so now we are going to talk about how we are going to install the Hadoop in our Linux machine. तो इसके पहले हम लोगों ने अपनी Linux मशीन को सेटअप किया था. Now it's time to install the Hadoop in it. But before installing the Hadoop, there is a basic prerequisite कि हम लोगों को Java 8 की नीड होगी अपनी मशीन Hadoop इंस्टॉल करने से पहले. So let us simply open the terminal. Let's open the terminal here. और टर्मिनल ओपन करने के बाद let us check whether we have Java in our machine. So if you write Java hyphen version, it will tell you whether you have Java or not. But it is saying कि Java is not found. इसका मतलब we do not have Java. अब Java इंस्टॉल करने के लिए we have a different options. आप देख सकते हो खुद बता रहे हैं कि sudo apt install JRE. तो इस तरीके से आप जाकर इसका कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो. So the first command is to install the Java. तो इसके लिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं sudo apt install openjdk-8-jdk-y. तो ये सबसे पहला काम हम लोगों ने करना है दैट वी हैव टू इंस्टॉल दी openjdk 8 क्योंकि Hadoop बाय डिफॉल्ट JDK 8 को सपोर्ट करता है. दैट्स व्हाई वी आर इंस्टॉलिंग दी openjdk 8. सो दिस इज द फर्स्ट कमांड दैट वी हैव टू एग्जीक्यूट. लेट्स हिट एंटर एंड वेट फॉर इट. पासवर्ड लिखकर एंटर करते हैं. Okay, तो let's remove the y and then see. Okay, so we don't have to write y at the end. यहाँ पर आकर y लिखकर enter कर लेते हैं. So I just have removed the y after it. So let me write the command. मैं साथ साथ यहाँ पर commands भी लिखता रहूँगा so that you can see what commands I have executed till now. Sudo apt install open jdk hyphen 8 hyphen jdk. This is the first command that we have to execute. सबसे पहले हमने ये execute करना है जो कि जाकर आपकी मशीन में Java 8 install करके आता है. Okay, so finally Java is installed successfully. Let us execute the Java version. अब check करते हैं Java version आया क्या हमारे पास. Now you can see we have this OpenJDK version. Successfully we have this Java version in our machine now. After having this, now we need to do one thing कि अब यहाँ से Hadoop को setup करना शुरू करते हैं. But before setting up the Hadoop, we have to install the OpenSSH in our machine. OpenSSH is the secure server shell we have. तो जब भी आप कोई भी ऐसा सर्वर की रिलेटेड कोई भी चीजें करते हो Linux या Mac machines पर, तो आप लोगों को उसके लिए OpenSSH server इंस्टॉल करना होता है. So there you just need to write sudo apt install OpenSSH hyphen server open ssh hyphen client hyphen y. Let's see, actually client hyphen y nahi, that must be space hyphen y. Okay, that must be space hyphen y. So let me write this command कि मैंने क्या लिखा था after that. So this was the first command. Second command is sudo apt install open ssh hyphen server open ssh hyphen client space hyphen y. So this is the next command that we have executed. तो इस command से क्या होने वाला है? It is going to install the open SSH server in your machine. Okay, successfully installed. ये हमने क्यों किया? Because we are going to build, we are going to establish a passwordless SSH connection. तो जब भी हम लोग इसमें काम करते हैं Hadoop के साथ, तो जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे, you don't have to write password again and again. तो सिक्योर शेल अलाउ करता है कि आप रिमोट कनेक्शंस बना सकते हो बिटवीन द टू सिस्टम्स. और उसको अगर पासवर्ड लेस मुझे चलाना है तो वी हैव टू इंस्टॉल दिस. ओके, नाउ इट इज डन. द थर्ड स्टेप इज टू क्रिएट द यूजर. अभी दो चीजें हो चुकी हैं हमारे पास. फर्स्ट थिंग वी हैव इंस्टॉल्ड द जावा. सेकंड थिंग वी हैव इंस्टॉल्ड द ओपन एसएसएच सर्वर. थर्ड स्टेप इज टू add a new user for Hadoop. अब क्या करना शुरू करते हैं कि आपको Hadoop इंस्टॉल करना है. So instead of Hadoop will be accessible to all the users, we are going to create a new user that is specifically for Hadoop. तो Hadoop के लिए हम लोगों ने एक नया user create करना है. So just add user and then you just need to name anything. Let's say I'm writing HDP. That's it. Okay. So you can name it as it is if you want, or after that you have to mention one password here. So the password is shorter than 8 character. That is not a problem. आप जो भी पासवर्ड आपने चेक करना है वो आप कर सकते हो. इट्स नॉट मैंडेट कि आप 8 डिजिट का कैरेक्टर का पासवर्ड ही लिखने वाले हो. आफ्टर दैट इट विल आस्क यू कि आपको नेम वगैरह कुछ लिखना है. नहीं, वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जस्ट प्रेस एंटर. तो वट एवर द डिफॉल्ट वैल्यूज आर वो उनको स्टोर कर लेगा. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट राइट वाई एंटर. दैट्स इट. तो इसने क्या किया? इसने जाकर एक नया यूजर ऐड किया. सो नाउ राइट नाउ यू कैन सी द करंट यूजर इज रवि हियर. तो ये यूजर है जो अभी इस मशीन को एक्सेस कर रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू स्विच यूजर.
So SU is for the switch user. So the new user is HDP. तो अब हमें एक नए यूजर के साथ लॉगिन करना है. The user name is HDP जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था. Hit enter. It will ask the password जो आपने यूजर क्रिएशन के टाइम पर लिखा था. So now you can see here instead of Ravi it has written HDP. तो यहाँ पर रवि की जगह पर क्या आ गया है? HDP. Now comes the next step. अब इसके बाद हम लोग को एक SSH की पेयर जनरेट करना होता है टू एनेबल पासवर्डलेस SSH फॉर Hadoop यूजर. कि जो भी हम ये Hadoop यूजर होगा इसके लिए अगर हमें पासवर्डलेस SSH चाहिए होगा तो वी हैव टू जनरेट एन SSH की पेयर. तो उसके लिए देयर इज अ कमांड SSH हाइफन keygen then hyphen T RSA then hyphen capital P then space quotes then hyphen F then tilde slash dot SSH slash ID underscore RSA. तो what exactly this is? ये हम लोगों का की जनरेट करने की एक कमांड है. Let's hit enter and if ओके तो इट हैज जनरेटेड अ की. तो इसने जाकर एक की जनरेट की है. यहाँ पर यू कैन सी हियर योर आइडेंटिफिकेशन हैज बीन सेव्ड. ओके तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे नाउ यू आर एन ऑथेंटिकेटेड यूजर फॉर दिस मशीन एंड योर पब्लिक की हैज बीन सेव्ड. तो अब इस पब्लिक की को हम लोगों ने एक्सेस करना है. कैसे करेंगे एक्सेस हम लोग? तो वी जस्ट हैव टू राइट cat tilde slash dot ssh slash id underscore rsa.pub, that is for public, then double shift, then tilde slash dot ssh hyphen authorized keys, authorized underscore keys, and then hit enter. So इट इज सक्सेसफुल. अब इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक लास्ट चीज और करने वाले हैं, दैट इज chmod, दैट इज चेंज मोड. तो हम लोग को परमिशंस को चेंज करना है इस यूजर के लिए. सो वी हैव chmod कमांड, then there is this number 0600 tilde slash dot ssh slash authorized underscore keys. Hit enter. So the mode has been changed now. अब फाइनली हमें चेक करना है कि क्या हमारा सर्वरलेस जो SSH था इट इज रेडी और नॉट. तो उसके लिए SSH लोकल होस्ट लिखकर आपने एंटर करना है. तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड इट विल आस्क यू टू यस और नो समथिंग. तो आप यस लिखकर एंटर कर सकते हो एंड लेट्स वेट. So if this is the output, it means now you are absolutely ready to install Hadoop in your machine. तो ये सब कुछ हमारा प्री रिक्विजिट का ही पार्ट था जो कि अभी तक हम लोगों ने इंस्टॉल किया है. सो आफ्टर ऑल दीज स्टेप यू कैन सी हियर कि हम लोग SSH सिक्योर शेल को सेटअप कर चुके हैं, जावा सेटअप हो चुका है, यूजर सेटअप हो चुका है. आफ्टर दैट वील बी इंस्टॉलिंग दी Hadoop. ओके सो डेफिनेटली आई विल अपलोड ऑल दीज कमांड्स. तो अभी मैं कुछ कमांड्स जो लिख चुका हूं यहाँ तक, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. ओके तो SSH को इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट वी इंस्टॉल दी जावा, देन इंस्टॉल दी SSH. उसको इंस्टॉल करने के बाद वी एडेड अ न्यू यूजर, दैट इज sudo add user and name whatever you want. तो हमने उसका नाम HDP रखा. देन आफ्टर क्रिएशन ऑफ द न्यू यूजर यू हैव टू स्विच. तो आप लिखते हो su space hyphen HDP. तो यूजर स्विच करने के बाद वी जनरेटेड अ की. तो SSH कीजन लिखकर हमने की जनरेट की थी, hyphen T RSA hyphen capital P single quotes, then hyphen F, then tilde, then slash dot SSH slash ID underscore RSA. So this was the fifth step. तो यहां से हम लोग की की जनरेट होती है. After the generation of key, we have another command that is cat tilde slash dot SSH slash ID underscore RSA then .pub, that was for public, then double shift, then again tilde slash dot SSH slash authorized underscore keys. So this was the command number 6. तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया? We set up the SSH secure shell हमने setup किया so that passwordless login will be there. After that we set the permission for the user with the chmod command. तो इसके लिए हमने chmod 0600 tilde slash dot ssh slash authorized underscore keys लिखकर एंटर किया था. So far we did this thing. और इसको टेस्ट करने के लिए हमने चलाया था SSH local host. Okay,
So after all these things, we was having the perfectly set up machine. Now that machine is ready to install Hadoop. अब इसके बाद हमारी machine Hadoop installation के लिए हो जाती है ready. These are the first 8 commands that we have executed till now. Now comes the next part that we have to install Hadoop. तो Hadoop install करने के लिए you need to get into your browser और यहाँ से हम लोग चलते हैं Apache Hadoop डाउनलोड। तो सीधा हम लोग ऐसा कुछ सर्च करते हैं अपाचे हडूप डाउनलोड जैसा कुछ। चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर एंड फ्रॉम हेयर यू विल सी द लेटेस्ट वर्जन 3.3.3 और 3.2.3 विच एवर यू वांट। तो हम अभी 3.3.3 पिक करते हैं एंड यू हैव टू चूज दिस बाइनरी। ओके, तो आपको इसके बाइनरी को चूज करना है। यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं, इट विल जनरेट अ यूआरएल। तो आपको एक यूआरएल मिलने वाला है। सो जस्ट लुक एट दिस यूआरएल। सो वी नीड दिस यूआरएल, इस यूआरएल की हम लोग को जरूरत है। तो वी विल सिंपली कॉपी इट, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए जस्ट राइट क्लिक एंड कॉपी लिंक कर लेते हैं। ओके, हमने डाउनलोड भी कर सकते हैं क्लिक करके, बट वी विल डाउनलोड एंड इंस्टॉल यूजिंग द टर्मिनल। तो टर्मिनल यूज करके ही हम इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हियर, मिनिमाइज इट एंड गेट बैक टू योर टर्मिनल। यहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं wget। Okay, the command is wget to install anything coming from internet। तो ये जाकर enter करते हैं and let's see। So now you can see it has started to download Hadoop। इसने Hadoop को डाउनलोड करना शुरू कर दिया है from the internet। Okay, और अभी ये क्या डाउनलोड कर रहा है? It is downloading the zip। Okay, तो zip डाउनलोड करने के बाद we'll be extracting it। So let us wait for few seconds or minutes जब तक ये डाउनलोड करता है Hadoop को। All right, so now you can see the download part is completed। तो हम लोगों का Hadoop successfully download हो गया। After the download part is completed, we have to install it। इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जब हमने डाउनलोड किया था that was the zip tar.gz। तो इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के लिए the command is very simple। We just have to write tar -xvf और फिर इसके बाद हमारी जो फाइल है उसका नाम है Hadoop 3.3.3.tar.gz। एंटर करते हैं तो इट विल एक्सट्रैक्ट दिस। तो ये जाकर एक्सट्रैक्ट करके आ जाएगा Hadoop फोल्डर को। सो लेट मी जस्ट राइट द कमांड्स हियर। तो इतना करने के बाद हमने लिखा था wget एंड देन दी Hadoop डाउनलोड लिंक, जो कि आप लोगों को डाउनलोड करना है इंटरनेट से। नेक्स्ट स्टेप इज टू tar-xvf। ये किसके लिए? अनजिप करने के लिए फोल्डर को। तो हमारे Hadoop फोल्डर का नाम 3.3.3.tar.gz था, ये उसके लिए है। सो फाइनली वी कैन सी कि हम लोगों का जो Hadoop है वो एक्सट्रैक्ट भी हो चुका है। एंड लेट्स राइट ls ये चेक करने के लिए कि हमारे पास Hadoop आ चुका है, दैट इज 3.3.3 वर्जन नाउ। सो फाइनली Hadoop डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन पार्ट। इंस्टॉलेशन से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि वी हैव एक्सट्रैक्टेड इट सक्सेसफुली। इसके बाद हम लोग को Hadoop का पाथ सेट करना है अपने एनवायरमेंट वेरिएबल के लिए। सो वी विल राइट sudo nano dot bash rc। तो इट विल ओपन अ न्यू फाइल जिसके अंदर जाकर हम अपने Hadoop के कुछ एनवायरमेंट को सेट करके आने वाले हैं। तो लेट अस एंटर एंड नीड टू एंटर द पासवर्ड। ओके, अच्छा, अब इन फ्यू केसेस यू कैन सी दिस एरर एज वेल। जब हम पासवर्ड वगैरह लिखने जाते हैं तो इट जनरली सेज दैट इट इज नॉट इन द sudoers फाइल। तो ये भी हो सकता है बहुत बार कि जब भी आप लोग Hadoop इंस्टॉल करने जाओगे, लाइक Hadoop इंस्टॉल हो चुका है, या ये जो एरर है ये पहले भी बीच में कहीं शायद आपको देखने को मिल सकती है। सो बेसिकली दिस एरर जनरली कम्स कि जब भी हम लोग अपना Hadoop सेटअप करने जाते हैं तो उसके लिए हमने एक न्यू यूजर बिल्ड किया था। और जब हम इस यूजर को बिल्ड करते हैं तो ये यूजर को ऐड नहीं करता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल यूजर, जो कि पहला हम लोग का यूजर था। तो SU रवि कर देते हैं इसको, जो कि हम लोग का मेन यूजर है, एडमिन है। ओके, सो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल्ड, दोबारा लिखते हैं। ओके, तो द कमांड इज नाउ कि यूजर को ऐड करना है हमने। सो हाउ वी आर गोइंग टू ऐड द यूजर? आई विल राइट sudo add user। अब हमने जो यूजर का नाम रखा था वो था हमारा HDP एंड देन अगेन sudo।
ओके और एक चीज और करनी है उसके पहले cd करके होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं. देन आई विल राइट sudo, then again add user, then hdp, and then the sudo. Enter. So you have to write the password now. Again enter the password. ओके तो इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस. कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा, एडिंग यूजर दिस टू ग्रुप sudo. तो अब ये यूजर अगर आ चुका है देन वी कैन अगेन स्विच टू दी दिस यूजर. ओके सो नाउ वी हैव स्विच्ड बैक टू द HDP यूजर. हम वापस HDP यूजर के पास आ चुके हैं. ओके तो वापस चलते हैं. जो कमांड हम लोगों ने लिखनी थी दैट वाज sudo nano डॉट बैश rc और फिर इसको एंटर करते हैं, पासवर्ड लिखते हैं. ओके नाउ यू कैन सी द फाइल इज ओपन. अभी ये फाइल ओपन हो गई है हमारे पास. बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं, जस्ट हिट एंटर. आपको लास्ट में आकर कुछ हडूप होम इन सब का पाथ सेटअप करके आना है. तो आई विल सिंपली राइट एक्सपोर्ट हडूप अंडरस्कोर होम इज इक्वल्स टू द पाथ ऑफ हडूप. तो वो कहां पर है, होम डायरेक्टरी, देन स्लैश HDP हमारे यूजर का नाम था और हडूप जो वर्जन आपने डाउनलोड किया था वो ये था. ओके देन यू हैव टू राइट एक्सपोर्ट Hadoop underscore install is equals to dollar Hadoop underscore home. Then after that, we have to write export Hadoop underscore MapRed. That is for MapReduce. ये MapReduce के लिए सेटअप करते हैं हम. Then write dollar Hadoop underscore home. Then again enter. इसके बाद let's write again export Hadoop underscore common underscore home is equals to डॉलर हडूप अंडरस्कोर होम. तो हर किसी के लिए हमें हडूप होम ऐसे सेटअप करके आना है. देन एक्सपोर्ट हडूप अंडरस्कोर देन HDFS अंडरस्कोर होम इज इक्वल्स टू डॉलर हडूप अंडरस्कोर होम लिखकर आते हैं. देन अगेन एंटर एक्सपोर्ट हडूप अंडरस्कोर. I think we have 1 2 3 4 5. ओके तो Hadoop path is over. I think Hadoop के लिए हमें सिर्फ इतने पाथ सेट करने हैं. देन yarn home is equals to डॉलर Hadoop अंडरस्कोर होम, ये सेट करते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट Hadoop अंडरस्कोर कॉमन अंडरस्कोर lib अंडरस्कोर native अंडरस्कोर dir is equals to डॉलर Hadoop underscore home slash lib slash native. तो ये Hadoop common lib native डायरेक्टरी के लिए. Then the export path is equals to dollar path colon dollar Hadoop underscore home then slash sbin then slash not slash colon dollar Hadoop अंडरस्कोर होम स्लैश बिन. तो ये हमारा मेन पाथ होगा जिसमें कि Hadoop होम तक का पाथ सेट है और उसके बिन फोल्डर तक का पाथ हम लोगों ने सेट करना होता है. नाउ कम्स वन लास्ट थिंग एक्सपोर्ट Hadoop अंडरस्कोर ऑप्शंस डबल कोट्स हाइफन d java then dot library dot path is equals to डॉलर Hadoop अंडरस्कोर होम स्लैश लिब स्लैश नेटिव. ये हम लोगों का एक और पाथ जो हमने सेट करना है दैट इज Hadoop ऑप्शंस. दैट्स इट. सो परफेक्टली वी हैव प्लेस्ड फ्यू थिंग्स. ये सब कुछ जाकर हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स को इसके अंदर सेट करके आना होता है. ओके सो आई होप वी आर क्लियर टिल हियर. और अब हम लोगों ने जाकर इसको सेव किया. एंड नाउ द लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज एग्जिट फ्रॉम हियर. यहां से हम लोगों ने एग्जिट करके आना है. एग्जिट करने के लिए यू कैन सी देयर इज अ शॉर्टकट दैट इज कंट्रोल एक्स.
सो कंट्रोल एक्स करके बाहर आ जाते हैं एंड देन जस्ट राइट सोर्स देन ~dot_bash_rc। ये किसके लिए? टू अप्लाई दी चेंजेस। जो भी आपने चेंजेस अभी अभी किए थे उन सबको अप्लाई करने के लिए वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। तो फाइनली वी आर टिल हियर कि यहाँ तक हम लोगों की जो पाथ सेटिंग है वो भी हो चुकी है, हम लोगों ने पाथ सेट कर दिया है जाकर। इसके बाद एक बेसिक स्टेप आता है कि आपको Hadoop environment.sh में जावा 8 का पाथ सेट करना होता है, बट राइट नाउ इन द लेटेस्ट वर्जन आई डोंट थिंक दैट इज मैंडेट, बट इफ यू आर यूजिंग सम अदर वर्जन तो उसके लिए जरूरत पड़ भी सकती है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज लेट अस गेट बैक, और यहाँ पर हम लोगों के पास Hadoop फोल्डर है, सो सिंपली राइट cd Hadoop, और इसके अंदर चलते हैं हम लोग। वी हैव टू विजिट इन विच डायरेक्टरी etc/Hadoop। यहाँ पर हमारे पास एक फाइल होगी जिसका नाम होता है Hadoop environment.sh। तो वी विल राइट sudo nano hadoop-environment.sh। तो इट विल ओपन दिस फाइल और इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आकर आपको मिलेगा एक्सपोर्ट जावा होम। तो यहाँ पर आप अपना जावा होम का पाथ सेट करके आ सकते हो। ओके तो इसके लिए क्या करना होता है, वी हैव टू रिमूव दिस कमेंट और यहाँ पर आपको अपना जावा होम का पाथ सेट करना है। वो कहाँ मिलेगा? usr lib और jvm। ये चाहो तो अपनी मशीन में जाकर पाथ टेस्ट कर सकते हो, इट विल शो यू दैट पाथ। जावा 8 ओपन jdk 8 एंड नॉट 8 आई थिंक, ओपन jdk amd 64। तो इसको कंफर्म करने के लिए यू जस्ट नीड टू गो इनटू दिस डायरेक्टरी और अदर लोकेशंस में जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, देन यूएसआर के अंदर आपको मिलेगा लिब के अंदर आपको मिलेगा JVM। सो लेट्स गो टू दिस JVM और यहां से हम लोगों के पास आ गया जावा 8 ओपन JDK AMD 64। सो दैट इज जावा 8 ओपन JDK AMD 64। तो ये सेम पाथ हम लोगों ने यहां पर जाकर सेट किया। ओके आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर कि यहां तक आप क्या करके आए हो। यू जस्ट हैव सेट द पाथ फॉर जावा। तो कंट्रोल एक्स करके इसको भी बाहर आ जाते हैं। तो नाउ जावा पाथ इज ऑल्सो सेट। नाउ कम्स फ्यू मोर स्टेप। इसके बाद कुछ मेन चेंजेस करने होते हैं हम लोगों ने, जो कि हम लोगों के मेजर स्टेप है, जिसमें कि हम लोग कुछ फाइल्स को एडिट करना होता है। व्हाट दीज फाइल्स आर एक्चुअली, तो जब भी आप लोग हडूप सेटअप करते हो तो उसके साथ हम लोग के पास 4 फाइलें होती हैं, क्योंकि जब आप अपना हडूप स्टार्ट करोगे तो 4 मेन थिंग्स कि वो एक आपका रिसोर्स मैनेजर नोड मैनेजर चलाएगा। इसके अलावा एक हमारे पास यार, ये सब कुछ सेटअप करने के लिए वी हैव दी एक्सएमएल फाइल्स अवेलेबल। उन सभी एक्सएमएल फाइल्स को हमने कुछ एडिट करना है और उनके फाइल के अंदर कुछ कोड लिखकर आना है। दैट कोड आई ऑलरेडी हैव रिटन एंड दैट आई विल शेयर विद यू एज वेल। तो वेयर इज द फायरफॉक्स? तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक फाइल अपलोड की हुई है मैंने, जिसमें कि ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेट्स से कि अगर आप फाइल्स में देखोगे तो यू हैव टू राइट दीज थिंग्स इन योर फाइल। तो जैसे अगर बात करें वन बाय वन, वी हैव टू नाउ परफॉर्म द कॉन्फ़िगरेशंस। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू एडिट द कोर साइट डॉट एक्सएमएल। तो आप जाकर कोर साइट डॉट एक्सएमएल को एडिट करोगे, उसके लिए यू कैन राइट दिस कमांड और sudo nano भी काम कर सकती है। तो लेट अस ओपन द टर्मिनल। तो cd स्पेस डॉट डॉट करके आप एक डायरेक्टरी बैक आते हो, अगेन वन डायरेक्टरी बैक। नाउ लेट्स गेट इनटू sbin, और sbin के अंदर ये कमांड में पेस्ट करके आ जाता हूं, sudo gedit core site dot xml। कैन नॉट ओपन डिस्प्ले। ओके आई डोंट थिंक gedit सेटअप किया है इसने। तो लेट्स डू वन थिंग, sudo nano ही कर लेते हैं, sudo nano देन core site dot xml। सो इज देयर core site dot xml, पहले चेक कर लेते हैं ls करके। ओके वी आर इन अ रॉन्ग डायरेक्टरी, एक्चुअली उसी डायरेक्टरी में हमें वो फाइल मिलनी चाहिए थी। तो cd hadoop etc/hadoop। ओके तो वापस एक बार sudo gedit ट्राई करते हैं। नो इट इज स्टिल नॉट ओपनिंग, तो sudo nano ही ट्राई करते हैं। ओके तो दिस इज द फाइल जो कि हम लोगों को एडिट करके आनी है। तो जस्ट स्क्रॉल दिस फाइल, दिस इज द hadoop environment.sh। ओके ओके वी हैव ओपन दिस फाइल। तो हमें जाना है sudo nano core site dot xml को एडिट करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि यू विल हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन टैग। इसके यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट करना है। तो लेट्स गो टू द फायरफॉक्स और यहाँ से सिर्फ इतना पोर्शन कॉपी करते हैं, जो प्रॉपर्टी टैग्स है सिर्फ वो कॉपी करना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन टैग वहां पर पहले से अवेलेबल है। ओके
तो जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड गेट बैक टू योर टर्मिनल और यहां पर इसको राइट क्लिक पेस्ट कर देते हैं, सेव दिस एंड देन कंट्रोल एक्स, बाहर आ जाते हैं। ओके, नाउ दिस वाज द फर्स्ट फाइल जिसको हमने सेव किया है अभी अभी। आफ्टर दैट सिमिलरली यू हैव टू सेव अनदर फाइल दैट इज hdfs साइट। तो इफ वी लुक इनटू दिस फाइल तो यहाँ से देखते हैं, इसके बाद हमें hdfs site.xml को रिप्लेस करना है, चेंज करना है। दिस इज द कोड दैट यू हैव टू कॉपी, बट यहाँ पर आप एज इट इज नहीं लिखोगे, यू हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स, आई विल टेल यू व्हाट। तो टर्मिनल पर चलते हैं, यहां से इस बार हमने एडिट करना है hdfs site.xml को, एंटर। तो यहां आ जाते हैं, पेस्ट करते हैं, लेट्स पेस्ट इट हियर। तो अब अगर यहाँ पर देखना शुरू करें ना, इट इज रिटर्न hd यूजर, तो hd यूजर इज नॉट अ यूजर हियर, सो द यूजर नेम इज hdp। तो यूजर का नेम हमने क्या रखा था, hdp, रिमेंबर दिस थिंग। तो ये क्या करने वाला है, dfs.datanode.data डायरेक्टरी, डेटा नोड और नेम नोड हमारे पास दो डायरेक्टरीज बनने वाली हैं, उसको हैंडल करने वाला है। ओके, तो यू जस्ट हैव टू राइट द HDP क्योंकि हमने यूजर का नाम यही रखा था। और और देयर इज वन मोर थिंग वी कैन डू, वी हैव dfs.data.dir कर सकते हो आप इसको, यू डोंट हैव टू राइट द होल थिंग। एंड देयर इज वन मोर थिंग वी कैन डू, just copy this property tag and hit enter and then paste again. This time instead of data I will write here, ओके इट विल बी डेटा, बट दिस टाइम इट विल बी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को दो डायरेक्टरी चाहिए, वन फॉर द डेटा नोड एंड वन फॉर द नेम नोड। तो ये जाएगा होम hdp hdfs एंड इट विल क्रिएट वन नेम नोड, ये जाकर वहां पर एक नेम नोड क्रिएट करके आएगा एंड इट विल क्रिएट वन डेटा नोड और एक डेटा नोड क्रिएट करके आएगा। आई होप दैट इज क्लियर कि इसने क्या किया है, यहाँ जाकर dfs.data.dir लिखा हमने दो बार। एक बार हमने सेट किया है होम hdp hdfs नेम नोड, होम hdp hdfs डेटा नोड। लेट्स सेव इट, इसको एग्जिट कर देते हैं सेव करने के बाद। नेक्स्ट फाइल वी हैव टू एडिट इज द mapred site.xml। इसके बाद हमें एडिट करना है नेक्स्ट फाइल को जिसका नाम है mapred, दैट इज मैप रिड्यूस। तो इसको एज इट इज कॉपी करते हैं and then get back to terminal. This time we have to edit mapred site.xml और नीचे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, राइट क्लिक, पेस्ट कर देते हैं। तो लेट्स सी, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है हम लोगों ने, ऑल दो इतना नहीं लिखना होता बट स्टिल बिकॉज ऑफ सम एरर मैंने सब कुछ ये सेट किया हुआ है। सेव करते हैं और लेट्स गेट आउट ऑफ इट। नाउ देर इज वन लास्ट चेंज वी हैव टू डू, इसके बाद एक लास्ट चेंज हम लोग का होगा दैट इज इन yarn site.xml। इसके बाद हम लोग को yarn site.xml में चेंजेस करने हैं। तो इसके लिए जस्ट कॉपी दिस प्रॉपर्टी, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड देन बैक टू टर्मिनल। इस बार हम लिख कर आते हैं yarn site.xml, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चलते हैं एंड लेट्स राइट क्लिक एंड पेस्ट। यहाँ पर राइट क्लिक पेस्ट कर देते हैं एंड आई डोंट थिंक वी हैव टू चेंज एनीथिंग हियर, सेव करके बाहर आ जाते हैं, दैट्स इट। तो ये जाकर हमने किसको एडिट किया, अपनी चार फाइल को। यू कैन जस्ट लुक एट 5 फाइल्स एक्चुअली, hadoop environment.sh, core site, hdfs, map reduce एंड yarn। इन चारों फाइल को हमने यहाँ से एडिट करना होता है। दिस इज इट, ऑल द चेंजेस एंड एडिटिंग इज कंप्लीटेड। अब फाइनली हम लोग रेडी हैं अपने नेम नोड डेटा हडूप को एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए, बट द लास्ट स्टेप इज टू फॉर्मेट द नेम नोड। हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग चेक करके आना है, एक तो दो चीजें होने वाली हैं उससे। फर्स्ट थिंग इज कि आपका हडूप सक्सेसफुली सेटअप हुआ है, वो टेस्ट होगा। सेकंड थिंग ये टेस्ट होगा कि आपका नेम नोड फॉर्मेट हो जाएगा, जो कि अगर बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ होगा तो क्या करना है, cd डॉट डॉट करते हैं, cd डॉट डॉट करते हैं, cd बिन के अंदर चलते हैं। एक्चुअली बिन के अंदर जाना इज नॉट मैंडेट, but still here I need to write hdfs name node hyphen format, ये चेक करने के लिए कि is it able to format the name node or now, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट Hadoop कमांड है जो अब हम रन करने जा रहे हैं। Okay, so it is saying hdfs, did you mean hdfs? Okay, so hdfs, तो let's do one thing, cd dot dot, एक काम और करते हैं, bin slash hdfs name node hyphen format। तो it has started,
सो आई थिंक देर इज सम एरर, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आता है जब ये, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर आया हमारे पास. सो इट इज सेइंग कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, दैट इज ऐप हडूप टेम्प डीएफएस नेम करंट. ओके, तो जब हमारे पास अगर कुछ ऐसा एरर आता है तो इट मींस वी हैव टू अगेन चेक अवर फाइल्स जो कि हमने अभी अभी एडिट की हैं. तो हमने ये जो नेम नोड वगैरह सेट किया था, ये हम लोगों ने सेट किया था अपने मैपरेड साइट डॉट एक्सएमएल और एचडीएफएस साइट डॉट एक्सएमएल में एक्चुअली. ओके, लेट्स सी इज देयर एनीथिंग एल्स. इसके अलावा तो कोई और एरर नहीं है, वी जस्ट हैव टू चेक इट. कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी. ओके, तो लेट्स गेट बैक. तो cd etc के अंदर चलते हैं और हडूप के अंदर जाते हैं, और वहां से हम लोग वापस चलते हैं अपनी hdfs site dot xml में. सो दिस फाइल इज आई थिंक completely perfect. एक बार टेस्ट कर लेते हैं. सो बेसिकली ऐसा रेयरली होगा कि इन वन गो यू विल बी एबल टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑल द थिंग्स. ऐसा बहुत कम होने वाला है. So one thing we'll do, HDFS home Hadoop, home HDFS name node. I think that is perfect. इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, that we have exception cannot create directory, common storage directory, clear directory. Or there is one more thing you can do. Before formatting this, एक काम और कर सकते हैं. Let us write cd dot dot, then again cd dot dot, then वापस हम नेम नोड फॉर्मेट पर आते हैं, एंड बिफोर दैट आई एम ट्राइंग sudo, देन टेस्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम परमिशन की वजह से भी हम लोग को इश्यू मिलता है. आई थिंक इट इज डन. या एग्जैक्टली, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग नाउ. आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट sudo. ओके, सो इट हैज सक्सेसफुली फॉर्मेटेड अवर नेम नोड. इसने जाकर नेम नोड को फॉर्मेट किया यहाँ तक. Now comes the final step that we have to start the Hadoop. यहाँ से हम लोग अपना Hadoop cluster start करते हैं. इसके लिए हम लोग चलते हैं cd sbin folder के अंदर, and then we write /start-dfs.sh. ये जाकर आपके डेटा नोड और नेम नोड को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इफ दिस कमांड विल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, तो हम लोग का डेटा नोड और नेम नोड सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा. लेट अस वेट. So it is a starting. Okay, now there is one more command, that is start yarn. ये किसके लिए? That is to start the resource manager and the node manager. तो actually we need four things: name node, data node, resource manager and node manager. ये चार चीजें स्टार्ट होनी हम लोगों के लिए मैंडेट होती हैं. सो आई होप ऑल द थिंग्स विल बी स्टार्टेड. और ये सब टेस्ट करने के लिए हम लोगों के पास JPS कमांड होती है. JPS कमांड के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं कि whether they are working. Yes, so name node is not up, but still let's see. अब ये सब कुछ चल गया है, तो अब आपने जाना है अपने ब्राउजर की तरफ और यहां जाकर टेस्ट करना है लोकल होस्ट :9870. तो अगर ये कमांड एग्जीक्यूट होती है तो ओके, दिस कमांड इज नॉट एग्जीक्यूटेड. लोकल होस्ट 9870, लेट्स कंफर्म कि यही था हमारा पोर्ट नंबर. 8088 भी है, 50070. 8088 भी ट्राई कर लेते हैं, but it should have executed. Yep. Okay, so finally you can see here, आपको 9870 नहीं करना. I think that is changed. तो अब आपने क्या करना है? You just have to write localhost 8088 and we have successfully installed the Hadoop in our Linux machine. सो आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? अभी तक हम लोगों के पास वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन है, हडूप इंस्टॉल हो गया हम लोग का लाइनक्स पे. आफ्टर दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लाउडेरा इंस्टॉलेशन ऑन अवर लाइन ऑन नॉट अवर लाइनक्स. एक्चुअली क्लाउडेरा इज इटसेल्फ डिफरेंट ओएस, तो वो हम लोग सेटअप करना सीखने वाले हैं आफ्टर दैट. ऑल राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.